Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, the POCSO Act was made to protect children from sexual violence, child marriage, child labor, और criminal trial. पोक्सो अधिनियम बच्चों को निम्नलिखित से बचाने के लिए बनाया गया था: यौन हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम या आपराधिक मुकदमे. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्सुअल वायलेंस. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यौन हिंसा. द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, दैट इज पोक्सो एक्ट 2012, is a comprehensive law enacted in India to protect children from sexual abuse, sexual harassment, and pornography. The POCSO Act, with its comprehensive provisions and strict penalties, aims to create a safe environment for children and ensure justice for victims of sexual offenses. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पोक्सो अधिनियम 2012 भारत में बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून है. अपने व्यापक प्रावधानों और कठोर दंड के साथ पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना और यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which body is responsible for the care and protection of children under the Juvenile Justice Act? District Child Protection Unit, Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee और Ministry of Women and Child Development. किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल कल्याण समिति. The Child Welfare Committee is a statutory body constituted under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 to ensure the care and protection of children in need. CWC ensures the safety and well-being of children who are abandoned, orphaned, or surrendered. The CWC plays a crucial role in the juvenile justice system, ensuring that the rights and needs of children are met in compassionate and legally compliant manner. बाल कल्याण समिति एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है. CWC उन बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है जो छोड़ा हुआ, अनाथ या आत्मसमर्पण कर दिए गए हैं. किशोर न्याय प्रणाली में बाल कल्याण समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों के अधिकारों और आवश्यकताओं की पूर्ति सहानुभूतिपूर्ण और कानूनी रूप से अनुपालनात्मक तरीके से की जाए. Next question is, which section of the Indian Penal Code 1860 deals with dowry death? Section 304A, Section 304B, Section 304C और Section 304D. भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है? धारा 304A, धारा 304B, धारा 304C या धारा 304D. The correct answer is option B, Section 304B. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 304B. Recently, in the case of Ankit Singh and others versus State of UP and another, the Allahabad High Court noted that it is surprising that despite the Dowry Prohibition Act being enacted in 1961, the progress in eradicating the practice of dowry has been slow. Section 304B of the Indian Penal Code deals with the offence of dowry death. It was inserted by the Dowry Prohibition Amendment Act 1986 to address the increasing incidents of dowry-related deaths. Section 304B is a crucial legal provision aimed at deterring the practice of dowry and providing justice for women who are victims of dowry-related harassment and violence. हाल ही में अंकित सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होने के बावजूद दहेज प्रथा के उन्मूलन में प्रगति धीमी रही है. भारतीय दंड संहिता की धारा 304B दहेज हत्या के अपराध से संबंधित है. दहेज से संबंधित मौतों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इसे दहेज निषेध संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा शामिल किया गया था. धारा 304B एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जिसका उद्देश्य दहेज प्रथा को रोकना और दहेज संबंधी उत्पीड़न और हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय प्रदान करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट प्रोहिबिट्स अनलॉफुल कन्वर्जन, एनी कन्वर्जन, बोथ और नन ऑफ द अबव. उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम निम्नलिखित पर रोक लगाता है: गैर कानूनी धर्मांतरण, कोई भी धर्मांतरण, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अनलॉफुल कन्वर्जन. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैर कानूनी धर्मांतरण.
Recently, in the case of Bijay Miss Olive Rohit and others, versus State of UP and others, the Allahabad High Court highlighted the controversial issues of alleged coercion in religious conversions and sexual abuse. The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Religious Conversion Act 2021 prohibits unlawful conversion from one religion to another through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement, fraudulent means और by marriage। हाल ही में विजय मिस ऑलिव रोहित एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन और यौन शोषण में कथित जबरदस्ती के विवादास्पद मुद्दों पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बहकाना, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन, कपटपूर्ण तरीके से या विवाह के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी रूप से धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है। द लास्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52A और आर्टिकल 52B। मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में दिए गए हैं। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52A या अनुच्छेद 52B। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। The fundamental duties under the Indian Constitution are enshrined in Article 51A of the Part 4A. They were added by the 42nd Amendment Act 1976 based on the recommendations of the Swaran Singh Committee. These duties are not enforceable by law, but they serve as a moral obligation for all citizens to help promote a sense of discipline and commitment towards the nation. भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य भाग 4A के अनुच्छेद 51A में निहित है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये कर्तव्य कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये सभी नागरिकों के लिए एक नैतिक दायित्व के रूप में कार्य करते हैं ताकि राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। बिफोर वी रैप अप, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। प्रोविजन फॉर डिफॉल्ट बेल इज मेड एज पर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? Subsection 8 of Section 173, Subsection 2 of Section 167, Section 174 और none of the above। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार डिफॉल्ट जमानत का प्रावधान किया गया है? धारा 173 उपधारा 8, धारा 167 उपधारा 2, धारा 174 या इनमें से कोई भी नहीं? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।